So welcome to the second lecture of combinatorics from path number. Now the topic will be started with selection of R objects when all n objects are not distinct. So we have n objects from which A are of one type, B are of other type, and C are of the third type. And now we have to select R objects from all these three set of objects total. So to find number of ways to select, it is possible to derive a formula that can be applied in all the cases. Instead, we'll discuss a method here. The method involves making case based on basis for alike terms in the selection. So यहाँ पर हम या तो कोई फॉर्मूला नहीं डेवलप करके हम मेथड डेवलप करते हैं और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेट करते हैं। तो अब इसका रिलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव ऑप्शन दैट यू कैन राइट इट लाइक दिस x to the power 1 0 plus x to the power 1 plus x to the power 2 up to x to the power a. So now you have first considered a bracket where you have added the cases of having a n times or x times. So for example, x to the power 0 denotes that the particular element a is being used one time, 0 times. Then x to the power 1 denotes it is one time, then 2 times, and so on. And then we'll multiply it by x to the power 0 plus x to the power 1 up to x to the power b. And similarly to x to the power c. So this product you have got, and when you multiply this, then you get a polynomial function of the form x to the power 0 plus x to the power 1 up to x to the power r plus x to the power r plus 1 up to x to the power a plus b plus c. Now the coefficient of x to the power r will denote the number of cases according to which we can select R objects from the total of set of objects. So I'll help you with this example also. The given letters include A, B, B, and C. To find number of selections, we will make the following cases based on alike terms, letters we choose in the selection. All three letters are alike. Then we will have B, B, B only one case. Then one letter is distinct, and three letters, all three letters are distinct. So this is one way, and a very generalized way, and we'll also have a generalized is what I'm telling. Understood? This would be complex code. This is done the similar way. So, but let me tell you my numbers. Okay. So you have taken a bracket. We have found a polynomial function which has three factors. The first factor is the denotes that from the set of A objects which are alike, how many objects you have taken. Then B denotes and C denotes are similar in a similar manner. This you can also relate to a bouquet where all the positions of the flowers are identical. Okay, so अगर आप bouquet में एक flower A type का पुट करते हैं, एक flower B type का और r minus 2 flower C type के, तो उसे जो उसको जब multiply करेंगे x की power 1 into x की power 1 into x की power r minus 2, so you'll get x power r minus r. So similar to this, you'll get the coefficient of x to the power r, and this will denote the total cases that you have found for r object selection. Okay, so in order to find the value of x to the power r, we can simply use the binary theorem and we can do it. Let's see if we can. Now, occurrence of ordered selection. If n objects are chosen as first n minus 1 objects are chosen and then n objects or n objects are chosen one by one, then always ordered selection are made and hence the repetition. So the final count is repetition that will be repetition. So क्या कह रहे हैं? N objects are chosen as first n minus 1 objects are chosen and then n of nth object is chosen. This is similar to the property that we done earlier. That we selected, we wrote NCR is equal to n by r into n minus 1 CR minus 1. यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया. याद है आपको कि जब हमने पहले n में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और n माइनस 1 में से r माइनस 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो हुआ क्या कि जो एक ऑब्जेक्ट हमने पहले या लास्ट में या शुरू में सेलेक्ट किया, वहां पर क्या हुआ कि then always ordered selections are made and hence the repetition. तो एक स्टेप जो आपने लिया, जो डिफरेंट से आपने स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सिलेक्शन किया, तो एक ऑर्डर डेवलप हुआ कि पहले सेलेक्ट होना और बाद में सेलेक्ट होना. हालांकि सिलेक्शन दोनों में केसेस में होता है, पर अब क्या हुआ कि पहले सेलेक्ट होना और बाद में सेलेक्ट होना एक डिफरेंट न्यू केस को निर्माण करा, एक नया केस डेवलप हुआ. बिकॉज ऑफ विच इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि हम फाइंड आउट में इन रिपीटेशन फॉर एक करना. फॉर एग्जांपल इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू स्क्वायर्स ऑन एन ऑर्डिनरी चेस बोर्ड सच दैट बोथ स्क्वायर्स आर नीदर इन द सेम रो नॉर इन द सेम कॉलम. तो अब इस क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट से करें, तो आप पहले सेम रो और सेम कॉलम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हमें टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ रोज सेलेक्ट करने होंगे बच्चों. अंडरस्टूड? एंड टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो हमने टू डिस्टिंक्ट रोज और टू डिस्टिंक्ट कॉलम सेलेक्ट किए, तो हमारे पास दो डार्क लाइंस है ना. अब हमारे पास जो डार्क लाइन बनी उसमें हमें चार square cubes हमें देखने को मिले. So what we did was that 8c2 into 8c2. Now what 8c2 into 8c2 gave us? We got four columns, out of which we can't choose both from one column or one row. So we chose, and we have two options to choose it from left, the diagonal ones. So we have the total cases are what we can understand. 8 into 7 by 2 into 8 into 7 by 2 into. Now यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है. क्या? The first square is selected in 64 ways. After selection of first, we can't select any of the remaining 7 squares which are the same row with first square, and similarly we can't select any of the remaining 7 squares. So the final आपके पास आएगा वो यही आएगा. 8 into 7, 7 7 49, 8 into 64, 64 into 49 by 4 into 2. So you get 64 into 49. So that's how the question can be done. You can do that by the given way also, but you can try by what I have told you. Now point of intersection between geometrical figures. So ये आपको ऊपर वाला समझना है. ये जो थ्योरी थी वो बस यही बताना चाह रही थी कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन से एक प्रॉब्लम आती है कि आपने फर्स्ट स्टेप में जो सिलेक्शन किया और सेकंड स्टेप में जो सिलेक्शन किया वो एक डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करते थे. अंडरस्टूड? और उसकी वजह से रिपीटेशन ऑफ केसेस होने लगता था. उस रिपीटेशन को आपको प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप केसेस को लुक डाउन करना होगा. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ज्योमेट्रिकल फिगर्स. We can use NCR number of ways to select R objects from any different objects to find points of intersection between equal figures. Now, for example, number of points of intersection of n non-concurrent and non-parallel lines is NC. Every given pair of lines will intersect at some of the other points if they are not concurrent. Understood? So the number of ways we can select two lines
is same as the number of ways we can select two intersecting lines or the number of lines the line will intersect. The number of lines that can be drawn passing through any two points of n given points in which no three of them are collinear. तो ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल है इसका एक अच्छा आप अगर कुछ टाइप की थ्योरी पढ़ लो थोड़ी बहुत एग्जांपल तो आप फिर ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाते हो। नाउ जैसे ये वाला क्वेश्चन कि एनी टू पॉइंट्स तो कितनी लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे। तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से एक लाइन जरूर पास करेगी और वो जो लाइन पास करेगी वो किसी भी और पॉइंट से पास नहीं करेगी। Therefore NC is the answer for this question as well. Now number of triangles that can be formed by joining any three points out of n given points in which no three of them are collinear is NC3. तो आप क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग एनी थ्री पॉइंट्स आउट ऑफ n given points in which no three of them are collinear. So you have n points in the space. Now any three points is they will form a triangle and this triangle won't be common between any of the other triangles. So that's why the total number of ways is NC3. Understood? Now number of diagonals that can be drawn in an n-sided polygon. So now we have an n-sided polygon. If it is any one of the vertex, then we can join it to the we can't join it to the adjacent vertices, two of which are there, and we try to join it to itself. So three cases are given. So n into n minus 3 are the cases in which we can form, but there is some repetition of cases. Why? Because when we join two points to form a diagonal, we might have selected the first point first or the second point first. So these make two cases, similar to what theory we had done. So that's how we have to divide it by 2. So the answer will be n into n minus 3 by. So now this is all about this multiple part. We'll do few questions out there because this is an important topic. The material part many times it's asked in the Olympiad and even in JEE. The proof that if each of n points is one side straight line to be joined to each of the n points by other straight lines terminated by the points, then excluding the given points, these lines will intersect in these many points. So क्या कह रहे हैं कि if each of n points is one straight line, there is a one straight line which has m points. We join to each of n points by other straight lines. So another there straight line is there which has n points. Then excluding the given points, these lines will intersect in how many points? Okay. So first you find the total number of intersections. Now any of the line you choose among. And one property is given that two lines are parallel as well. I think AC and BD are parallel. It's not clear. Okay. So this the point. This is not clear that AC and BD are meeting somewhere. So we'll take the non-parallel only. We take the non-parallel. I don't know how they have solved it, but we solve that non-parallel. So any two lines we draw. We take any of the m points in the first line and n points in the second line. We can form one line by using the number of ways to form one line is m into n. Okay, any one m of the line we can choose from the first and the second m line from the second. Now we can form a line by choosing any one of the m points and any one of the n points, and then we can divide it by some other number to get the cases. Now we have formed one line. Now we have to form another line. So that would be formed by n minus 1 into m minus 1 ways. Now we are sure that any two lines of this line will intersect. Any two lines of this line will intersect. Okay. So the total number of cases will be, and one thing is there, we might have formed the second line first or the first line first. So we have to divide it by 2 as well. So we have m into m minus 1, n minus 1 by. Okay. So these are the number of ways the lines will intersect. Now another thing, let us take two straight lines intersecting one point. So to get one point of intersection, we require 2 points on the first line and 2 points on the second line. For joining A of L1 to C and D of L2, they intersect in A, which is not counted as the required point. However, AD and CB intersect at point P1. AC and BD intersect only when extended, which is also not counted as the required point. तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो इंटरनली होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ से ये वाले जो पॉइंट्स है एसी और बीडी उनके इंटरसेक्शन को ये कंसिडर नहीं करते। तो देयरफॉर हमें 2 से और डिवाइड करेंगे क्योंकि जब m into हमने m into m minus 1 यानी कि फर्स्ट वी हैव सेलेक्टेड a then we have selected b, so we can have selected b and a also, we have to divide it by 2, then we have n into n minus 1, so first we have selected c then we have selected d, again we divide it by. Now when we had these 4 points, how many lines did we get? We got 4 lines, and out of this only one intersect, 2 into 1, therefore we got the total cases is equal to m into n into m minus 1 into n minus 1 by 2. This is the required answer. Now formation of the next one. Is there an exercise anyway? Now there is another topic out here that set theory we can use to solve certain questions. This question last one as we should try. Let AP I is equal to 1 2 up to 21 be the vertices of a 21 sided polygon inscribed in a triangle. That is the method we do it easily. So आपके पास क्या है कि 1 2 to 21 क्या है? Be the vertices of a 21 sided regular polygon. 21 sided regular polygon पर हमारी A1 A21 अपनी vertices हैं, ठीक है? A1 2 up to A21. Now the thing is that triangles are formed by joining vertices of the 21 sided polygon. How many of them are acute angle triangles? How many of them are right angle triangles? How many are obtuse angle? How many of them are equilateral and isosceles respectively? So सबसे पहले हम देखते हैं the extreme case. We see the right angle triangle. उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि obtuse angle and equilateral angle हम किस तरह से ढूंढ पाएंगे। तो 21 है, 21 में से हम देखते हैं कि एंगल्स कितने होंगे। जो एंगल्स होंगे वो होंगे 360, 180 into n minus 2 by n, 180 into 19 by 20,
T1 और ये दो वर्टेक्स के बीच का एंगल है। अब हमें किस तरह से प्रोसीड करना होगा कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा एक पॉइंट से हम सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कैन बी से ऑल एंगल्स आर इक्वल नॉट एट ऑल। सो अब हमें किस तरह से देखना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि वन वर्टेक्स यानी कि एक वन पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स एंड थर्ड वर्टेक्स से क्या हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं बच्चों या नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट विल टेक a1 a2 and an such that angle a1 a2 an is equal to 90 डिग्री। जो एंगल है a1 a2 an वो अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम इस केस को एडजस्ट करना चाहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वी हैव बेसिस अप टू a21 द दिस वन। तो व्हिच पर्टिकुलर एंगल विल गिव अस 90 डिग्री। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी याद है एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर इस एंगल को 90 डिग्री होना है a1 a2 an को अगर 90 डिग्री होना है वेयर a2 पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो एंगल a1 a2 an सॉरी a1 an शुड बी डायमीटर फॉर श्योर। ये बात मुझे पता चल गई अपनी सेमी सर्कल और हिस्ट्री से कि उसको डायमीटर होना ही पड़ेगा। और मुझे आप ये बताइए कि क्या कोई भी दो वर्टिसेस एक 21 साइडेड इक्वल साइज पॉलीगन में क्या कोई भी दो वर्टिसेस ओरिजिन से पास कर पाएंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर 20 वर्टिसेस होती तो फर्स्ट एंड 10th वर्टिसेस वुड हैव कंस्ट्रक्टेड अ डायमीटर। अगर 21 वर्टिसेस है एग्जैक्टली तो जो डायमीटर का पॉइंट आएगा अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो 10.5 के करीब आएगा। ओके, नॉट 10.5 बट 11.5 बिकॉज़ 0 to 1 वी हैव टू शिफ्ट 1 यूनिट डिस्टेंस। तो अगर 20 साइडेड होता तो 1 से 11 में आता 1 एंड 11 वुड हैव टू 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। अब अगर दूसरा केस है तो 1 और 11.5 में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो केस है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। चेंज ये हुआ कि राइट एंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो अगर a1 a2 एंड a11.5 would have constructed a right angle triangle। तो अगर a1 a2 और a11.5 की जगह हम ले लें at a1 सॉरी अभी हम at a1 लेके चल रहे हैं या at a2 लेने के लिए हमें ये देखना होगा कि a1 a2 and a12.5 would have been considered right angle triangle at a2। अगर हम a11.5 लेके a11 ले लें a12.5 लेके a12 ले लें तो जो एंगल बनेगा a2 पर वो एंगल बच्चों a2 पर अब जो एंगल बना या बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो a1 a2 a12 will be obtuse angle up to a1 a2 a3। तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होंगे। यानी कि अगर हम a1 को फिक्स कर देते हैं और a2 पर राइट एंगल जिससे ज्यादा यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस आए वो 9 केसेस आए। तो द फर्स्ट वर्टेक्स वुड बी a1 इट वुड बी a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 और अप टू a12। अगर फर्स्ट वर्टेक्स a12 होती तो 1 + 11 इज 12 12 + 11 12 + 11 कितना होगा 23। 23 पे हम पहुंचे हमारे पास 23 तो है नहीं तो हमारे पास 21 22 23 की जगह 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वी कुड गेट a2 a12 द लास्ट वन वुड बी a12 a13 a2। तो a2 तक तो जा नहीं सकते हम a1 तक भी नहीं जा सकते a नॉट तक जा सकते। तो अब हमें ये समझ आ गया कि ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह से देखना है कौन से केसेस एक केस में मैंने आपको बताया कितने होंगे उसको आप सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड करके आप फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर। इसका एक हिंट और दे सकता हूं आपको कि जो अगर आपने एक फिक्स कर दिया जैसे a1 आपने फिक्स कर दिया दैट एंगल ऑन a1 बीइंग फॉर्म शुड बी ऑब्ट्यूज है ना। तो अब आप जो दो बाकी वर्टिसेस हैं उनको आप कहां से कहां वेरी करा सकते हैं। आप एक को तो a1 के लेफ्ट में रखेंगे और दूसरे को a1 के राइट में रखेंगे तभी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ये आप समझ सकते हैं। और आप उसको वेरी करा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द अदर टू वर्टिसेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 11। और इस सिंपल प्रॉपर्टी 10 सॉरी तो इस सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करके आप सारी वर्टिसेस एक जब a1 पे ऑब्ट्यूज एंगल फिक्स हुआ तो निकाल ली एस तो इनटू 12 इनटू 21 सिंपली करके आप टोटल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये टोटल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स आपको ये बात पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे टोटल के लिए आप ले लेंगे कोई भी तीन साइड एनी थ्री वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तो टोटल माइनस ऑब्ट्यूज एंगल विल गिव यू एक्यूट एंगल केसेस और इक्विलेटरल निकालना तो मेरे ख्याल से आप इजीली इजीली कर लेंगे आई सपोज। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं formation of subsets। So this was a good question. I have solved it for you. You can try it again with a different method and comment the method you used. Now formation of subsets. In these types of problems, we select elements from a given set to form subsets. We are supposed to form subsets under constraints. For example, two subsets P and Q are to form such that P union Q has all elements, P intersection Q and P intersection Q has no element, etc. To understand the problem based on this type, read the following question carefully। होता क्या है आपको ऐसा दे देंगे क्या करना होगा set X is the constructed
फॉर एग्जांपल टू सबसेट B and Q are formed such that P union Q are all elements, P intersection Q has no elements. आपको क्या देंगे कि आपके पास एक क्लास है, उसमें 100 चिल्ड्रन, एग्जांपल आई एम गिविंग यू 100 चिल्ड्रन, उसमें से आपको कुछ कंडीशन गिवन है कि X people like cricket, Y people like basketball, no person likes basketball and cricket. That is B intersection C is equal to 0. And all people like at least one sport and they don't like the both. So they every person like exactly one sport. Therefore B intersection B union C is equal to 100. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने इन्फर कर लिया कि हमें सबसेट्स बनाने हैं, हमें जो पूरा क्लास है उसके दो सबसेट बनाने हैं, सबसेट B और सबसेट C, where all the students like one sport exactly one sport. So we can divide it into B and C types. So अगर हमने एक स्टूडेंट को B दे दिया तो दूसरा स्टूडेंट अपने आप ही X स्टूडेंट्स को B दे दिया तो C दूसरे X हो गए. तो we can select 100 C X where X belongs to 0, 100 where X like basketball. याद है ये वाला केस हमने शुरू में किया था, where that when we can select 0 objects, 1 object, 2 objects up to n objects from a set of objects. वही वाला केस इस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि what is the concept behind it. अब हम आगे देखते हैं. Like let X be a set of n elements, a subset P of set X is chosen at random. The set X is then reconstructed by replacing the elements of set P and another set Q is chosen at random and find the number of ways to form such sets P intersection Q is equal to X. तो हमें क्या गिवन है कि X is a set containing n elements. A subset P of set X is chosen at random. तो X के अंदर से हमने एक P subset चूज किया. The set X is then reconstructed by replacing the elements of set P. तो set X को reconstruct किया गया by replacing the elements of set P and another set Q is chosen at random. Then find the number of ways to form sets such that P union Q is equal to X. ठीक है, तो हमने एक सेट P बनाया. अब हमने रिकंस्ट्रक्ट किया उसे और P को छोड़कर उसमें हमने कुछ और डाला और Q डाला and P intersection union Q is equal to X. यानी कि P union Q is equal to X. It means that every element would be either included in P or in Q. हर एक एलिमेंट या तो P में होगा या Q में होगा, या फिर वो कहीं भी नहीं होगा. बट P union Q is equal to X that also we have been given. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ गलत है. Either included in P or in Q or both. So every element there are three choices. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर क्लियरली गिवन नहीं है. रिकंस्ट्रक्टेड और ये सब आपने सिंपली बोला कि आपने एक सेट P बनाया और सेट Q बनाया आउट ऑफ X एंड यू नो दैट P union Q is equal to X. तो अब हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट है उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो P भैया के पास जाए, या वो Q के पास जाए, या वो दोनों के पास जाए. Therefore the total cases is equal to 3 to the power n. Understood? This was what all about it. An example for us. Now another example. Let X be a set containing. Let me mark this. I'm marking what I've already taught you. In future, I will make another video. Then you may try the other questions. But if you can, I think you will be able to solve the leftover questions because they are very simple up till now. Now let X be a set of containing n elements. A subset P1 is chosen at random and then X set is reconstructed by replacing the element of set P1. A subset P2 of X is now chosen at random and again set X is reconstructed by replacing the elements of P2. अब now I'll tell you the meaning of replacing the element because now it's extremely important. अब क्या किया आपने, एक तरह ये तरीका हो सकता है कि आपने एक पूरा सेट X लिया, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा, जैसे आप एक डेक ऑफ कार्ड दिया आपने और उसमें से आपने 5 कार्ड्स विड्रॉ कर दिए, एक सेट बना दिया. अब आपके पास दो ऑप्शन है दूसरा सेट बनाने के लिए, या तो आप सिमिलर उन 5 कार्ड्स को वापस रखो और फिर 5 कार्ड्स विड्रॉ करो तो उसको सेट 2 मानो, या फिर आप उन 5 कार्ड्स के अलावा और 5 कार्ड्स विड्रॉ करो और उनको सेट 2 मानो. यानी कि जो सेट्स हैं उनके अंदर एलिमेंट रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, एलिमेंट रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट, उसके अकॉर्डिंगली दो सेट्स बनेंगे. Okay, so this process is so let X be a subset or a set containing n elements. A subset P1 is chosen at random and then set X is reconstructed by replacing the elements of set P1. A subset P2 of X is now chosen at random and again set X is reconstructed by replacing the elements of P2. This process is continued to choose subsets P3 up to Pn, where m is greater than or equal to 2. Find the number of ways to select sets such that P1 intersection Pj is 5. तो आपके पास m सेट्स हैं where m is greater than or equal to 2. Find number of ways to select sets. तो आपने क्या किया कि कोई भी दो सेट्स आपस में मिलकर, बच्चों कोई भी दो सेट्स आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमनली कंटेन नहीं कर सकते हैं. ओके, any two sets in this world in which we are living can't contain a common element between them. So the thing is that now we have to see that we can form any number of sets that will constant. तो दो केस हो सकते हैं, या तो जो सारे सेट्स हैं जो भी आप स्मॉल सेट्स दैट वी हैव फाउंड, वो सारे सेट्स टोटल मिलके जब उनके सारे एलिमेंट्स को ऐड करें, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट होने का सवाल नहीं होता क्योंकि वो एज अ कंडीशन गिवन है, तो सारे एलिमेंट्स को जब हम ऐड करें तो जो नेक्स्ट सेट निकल कर आएगा, जो नेक्स्ट सेट निकल कर आएगा वो या तो इक्वल टू एक्स हो सकता है वेयर एक्स इज द कंप्लीट सेट, या फिर वो स्मॉलर देन एक्स हो सकता है, वो टोटली सारे एलिमेंट्स एक्स के कंटेन कर सकता है, या फिर कुछ एलिमेंट्स एक्स के कंटेन कर सकता है. तो अब इसमें से कौन सा केस फॉलो हो रहा है वो चेक करना होगा हमें, कितने एलिमेंट्स को टोटली कंटेन कर रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि केस 1 लेते हैं. नाउ एक्स के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स है वो n एलिमेंट्स है, तो मैक्स नंबर ऑफ सेट्स बिकॉज़ नॉन नल सेट्स आर देयर, तो मैक्स नंबर ऑफ सेट्स जो हमारे को बना सकता है जा सकते हैं वो n सेट्स हैं, हर में एक एलिमेंट आ जाए. तो पहला केस लेते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर कवर्ड. ठीक है, इसको हम लिखते हैं f ऑफ n. f ऑफ n कितना आया, n सेट्स वेयर ईच सेट कंटेन ऑल सेट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट. देखो P1 के अंदर अगर 1 है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आर लाइक 1 2 3 अप टू n, तो P1 के अंदर 1 है और P2 के अंदर 1 है,
डिफरेंट केस है, P1 एंड P2 डिफरेंट सबसेट्स। तो हमारे पास क्या केस है, n फैक्टोरियल केसेस आ गए। व्हेन वी कैन फॉर्म n सेट्स, तो नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू n, तो उसके अंदर n फैक्टोरियल केसेस है। अब हम कंसीडर करें ऑल एलिमेंट्स कवर्ड, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n ओनली, बट वी हैव वन सेट विद टू एलिमेंट्स, वी हैव वन सेट विद टू एलिमेंट्स। सो हमारे पास क्या तरीका है कि हम nc2 करें, उसको एक में भेज दें, इनटू n माइनस टू फैक्टोरियल। नाउ द नेक्स्ट केस इज, तो इस तरह से हमारे केसेस बनते जाएंगे, nc2 into n minus 2 factorial, n minus 2 sets contain one element each. Yes. Then we have nc3 into n minus 3 factorial. Yes. अब इसमें जब तीन सेट बने, सॉरी पहले n सेट्स बने, फिर n minus 1 सेट्स बने। अगर n minus 2 सेट्स बने तो उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो एक में तीन एलिमेंट्स और बाकी में एक एक एलिमेंट हो, या फिर दो में तीन एलिमेंट्स हो, यानी कि nc2 into nc2 into n minus 3 factorial, n minus 4 factorial, कि दो सेट्स में दो एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स एक एक है सब में। अब तीन वाला केस हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, every element in X has m plus 1 choices because either it can be selected for P1 or P2 or P3 or up to Pm or not get selected in any of the sets. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफाइंड है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स डिफाइंड है। मेरे ख्याल से हम जो करते हैं इवन लार्जर, इवन डिफिकल्ट, अगर इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें मोस्ट इंटेंस क्वेश्चन जो बना सकते हैं उसमें ये कर सकते हैं कि वो n भी ना दे, टोटल नंबर ऑफ सेट्स भी आपको ना दे, तो उसमें आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स दे दिए कि n सेट्स आ दे, n सेट्स दे दिए तो आपके पास अब इजी हो गया कि हर एलिमेंट के पास एक ऑप्शन है, या तो वो किसी फर्स्ट सेट में जाए, सेकंड सेट में जाए, या n सेट में जाए टू n, या फिर वो किसी भी सेट में ना जाए। तो हर जो एलिमेंट है उसके पास n प्लस 1 चॉइसेस हैं कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए हमें ये यहाँ पर हमें देखना होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा दो सेट्स की जगह n सेट्स हैं। नाउ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन अप टू Pm इज 5, यानी कि ये कह रहे हैं कि सबका इंटरसेक्शन, नो एलिमेंट। इसे आपको सबसे पहले इसमें जो थ्योरी, उस थ्योरी को मैं अगर आपको क्रक्स में बताऊं ना, थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि नो, जो हमें सबसेट रिलेशन दिया हुआ है, द रिलेशन अमंग द सबसेट्स दैट वी हैव गिवन algebraically, वी हैव टू कन्वर्ट दैट रिलेशन टू सिंपल व्हाट यू कॉल algebraic रिलेशन को हमें एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा। अब इसको हमने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस किया, इसमें हमने इसको, मैंने आपको बड़ा केस भी बता दिया था, पर इसमें जो पर्टिकुलरली दिया हुआ है, इसमें ये जो लिखा हुआ है, जस्ट दिस स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग इज गिविंग अस द हिंट दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग। तो इसी से इन्फर करना है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है P1 इंटरसेक्शन P2 Pi इंटरसेक्शन Pj 0, सो नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन एनी टू सेट्स, किन्हीं भी दो सेट्स में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। और I, J इज इक्वल टू अप टू 1 to m, एंड जो ये लिखा है I, J इज इक्वल टू 1, 2 up to m, इससे ये क्लियर होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स आर m। सो इस गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, एंड वर्ड्स से सॉल्व करना आपको वैसे ही करना है जैसे आपने अब तक सीखा। जैसे कि ये P1 अब ये सेकंड जो सिचुएशन है उसको समझिए। सेकंड सिचुएशन में कहा गया है कि P1 इंटरसेक्शन P2 up to Pn इज इक्वल टू 5, यानी कि नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ऑल द सेट्स। तो यानी आप किसी भी एलिमेंट के पास जाओ, आप एलिमेंट 1 के पास गए, एलिमेंट 1 से आपने पूछा, एलिमेंट 1 के पास क्या-क्या ऑप्शन है, या तो वो इट कैन कम इनटू एनी, इट कांट कम इनटू एनी सेट, दैट इज वन केस। यस, और इसको आप दूसरी तरह से देखिए, आपने एक सबसेट से पूछा, आपके पास m सबसेट्स हैं, आपने किसी भी एक सबसेट से पूछा कि हाय सर, हाँ, बट इसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप सारे सबसेट से पूछोगे और अगर फॉर एग्जांपल सारे सबसेट्स ने ही कह दिया कि हमें m चाहिए या n चाहिए या कोई पर्टिकुलर केस चाहिए, सारे ही सबसेट्स ने कह दिया यस यस यस, मैं आपको ऐसा सोच रहा था कि अगर यहाँ पर ऑल इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 ना दिया होगा, है ना, और ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि एक एलिमेंट सारे सेट्स में है ना, तो आप वैसे कर सकते थे कि आप हर सेट से पूछते कि यस हाई सेट, डू यू वांट एलिमेंट 1 इन यू, डू यू वांट एलिमेंट 2 इन यू, तो यस नो करके वो आंसर दे सकता था। पर अगर एलिमेंट 1 के लिए सबने यस आंसर कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एकदम पहले वाले केस में जानते हैं, है ना। तो हम अब ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, हम हर सेट से पूछते हैं, हर सेट से पूछते हैं कि हाई सेट वुड यू टेक एलिमेंट 1 और नॉट। तो सेट 1 से ने पूछा तो उसने कहा यस और नो, दैट टू ऑप्शंस, तो कितने ऑप्शन लगे 2 इनटू 2 अप टू m, तो 2 की पावर m। अब इसमें एक केस ऐसा पर्टिकुलर केस आया कि सबने यस बोल दिया, उस क्वेश्चन को हटा दिया हमने 2 की पावर m -1, तो ये हो गया फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही सब n का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आंसर क्या आ गया 2 टू द पावर m -1 होल टू द पावर m, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ द बाइजेक्शन प्रिंसिपल, let a is equal to a1 a2 up to an, b is equal to b1 b2 up to bm, if f a to b is an injective function then n is smaller than equal to n। ठीक है, तो अब बात क्या हुई कि अगर a to b is an injective function, तो हम बाइजेक्शन प्रिंसिपल समझते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और आपको आना भी चाहिए एनीवे। तो ये क्या कहता है कि लेट एक सेट है a, एक सेट है b, नाउ इफ a to b is an injective function then n is smaller than equal to n। if a to b is an surjective function, इंजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब होता है कि if n1 greater than n2 then m1 greater than m2, अंडरस्टूड। यानी कि हर एक एलिमेंट, तो ये अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे n1 ग्रेटर देन वाला, पहले मैं आपको इंजेक्टिव का मतलब समझाता हूं। इंजेक्टिव का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट, एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट A इज मैच्ड टू सम एलिमेंट इन सेट B
एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हैव अ मैच। और इसमें फंक्शन जब बनाया, फंक्शन की भी एक इसने क्वालिटी या एक कंडीशन जुड़ी कि ए से बी में जब आप मैपिंग करेंगे तो ए के एक एलिमेंट को बी का एक ही एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं कनेक्ट कर सकते, और बी के एक एलिमेंट को ए के एक से ज्यादा एलिमेंट से मैच कर सकते हैं। तो इसलिए कंडीशन है कि n is smaller than equal to m, and then a to b is a surjective function, then n is greater than equal to m. If a to b is an injective and a surjective function, then f is known to be a bijective function, and for a bijective function n is equal to m. So आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं. What is the total number of subsets of a set containing exactly n elements? n एलिमेंट वाला एक सेट है बच्चों, और उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, यानी कि एक बार में एक ही सेट बनाना है वो निकालना है. तो क्या हो सकते हैं, हर एलिमेंट से पूछा कि भाई डू यू वांट टू कम इन द फॉर्म, हम एक सबसेट बनाना शुरू करते हैं. तो उसको शुरू करने के लिए हम क्या पूछेंगे, हर एलिमेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे कि हाई एलिमेंट डू यू वांट टू कम इन द सबसेट फॉर्मेशन स्कीम. जैसे हम गवर्नमेंट स्कीम होती है तो हम पूछते हैं, गवर्नमेंट आस्क पीपल डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्कीम, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू ग्रुप ऑफ स्कीम्स. वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वी आर हम उनसे बोलेंगे वी आर फॉर्मिंग सबसेट, वी वांट टू पार्ट ऑफ इट. तो इट हैज टू ऑप्शन, वी कैन पार्ट एंड नॉट अ पार्ट. So we have two options for each element. So the total number of subsets including a null set is 2 to the power n. Okay, now let's take further. अब इसने एक दूसरा तरीका निकाला है. Let S is equal to A to A and be a set of n elements. Let P be set of all subsets of S and Q be the set of all binary sequences of n elements. Let A belong to P. Let F P to Q be a function that associates a binary sequence with A as follows. AI belongs to A if ith element of the sequence is 1. तो अब इसने इन्होंने इसको बाइनरी का यूज करके, और ये जो चोरी है बाइजेक्शन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर्टिकुलरली इस प्रिंसिपल का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो हमें देखना है. Okay, so it is well known result, number of subsets is equal to 2 to the power n, and now we have written a binary where, or we have defined a function for that manner, that if there is a 0 in that place, then it is a part of the subset, it is not a part, and if there is a 1 in the sequence, then it is a part, and 0 1 0 1 0 1 and 0 0 0, and every option, every box has two options. Observe that for every subset A there is a binary sequence of n terms, and for every binary sequence of n terms there is a subset A to S. Every binary sequence is unique. अब ये आपको समझना होगा कि अगर सेकंड प्लेस वाले पर 1 है तो ये दिस नॉट अ सिलेक्शन बट दिस इज अ परम्यूटेशन. अगर सेकंड प्लेस पर 1 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हाँ कि एक पर्सन जो है वो पार्ट है. उसका मतलब ये है कि जो सेकंड पर्टिकुलर एलिमेंट है एंड एवरी एलिमेंट इज यूनिक फॉर दैट मैटर, वो पार्ट है या नहीं है. तो यहाँ पर इसलिए हमने वी डिडंट यूज कॉम्बिनेशंस, यूज परम्यूटेशन. अंडरस्टूड द रीजन? नाउ लेट अस सी. Consider a network as shown in the figure. Paths from A to B consist of horizontal or vertical line segments. तो अब हमने क्या किया, एक पाथ है A to B में, उसने horizontal और vertical line segment से बना हुआ है, ग्रिड टाइप की मान लीजिए. तो अब नो डायगोनल मूवमेंट इज अलाउड, वी कैन ओनली मूव लेफ्ट और राइट और अप और डाउन. हाउ मेनी वेज आर देयर फ्रॉम A to B? अब हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे बंदे के पास ऑप्शन है कि क्या वो राइट जाना चाहता है, क्या वो अप जाना चाहता है, राइट जाना चाहता है, राइट जाना चाहता है या अप जाना चाहता है. हर पर्टिकुलर स्टेप पर वो ऑप्शन है. तो टोटल स्टेप्स इज इक्वल टू m plus n steps if m is the number of horizontal steps and n is the number of vertical steps. अब एक बाइनरी कंस्ट्रक्ट कीजिए जैसे आपने पिछले केस में करी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बाइनरी को फर्स्ट स्टेप नाम दीजिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड स्टेप, थर्ड एलिमेंट को थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप अप टू nth स्टेप. अंडरस्टूड? हर स्टेप को अपना एक नाम दे दीजिए. ओके, एंड अब हमें क्या मिलेगा कि ये जो n स्टेप्स हैं, है ना, हर स्टेप का अपना एक नाम है. तो हर अब एक बाइनरी बनेगा 0 1 का. अगर 0 आया बाइनरी में, है ना, इसका मतलब वो राइट जाना चाह रहा है, अगर 1 आया तो अप जाना चाह रहा है. तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू m जीरोस. तो ये जो m प्लस n की जो सीरीज है उसमें m पोजीशंस पर, m यूनिक पोजीशंस पर एक 0 होगा और n यूनिक पोजीशंस पर एक 1 होगा. तो इस तरह से हमारे पास केस वर्क होता है.